Hello everyone, I am Nagendra and welcome you back to my YouTube channel Pro2U Adda. Today we are going to discuss sample question paper released by CBSE and we will be watching how the answers are being reflecting and why the answers are being reflecting. We will be watching all the explanations also. Till now, if you have not subscribed the channel, then do subscribe, like and share. Now, we are going to start the very first question. And this is about general instructions, what are the paper patterns and how the marks will be inculcated. These all are already being shown. Which part, which section will contain how much case studies questions are there. This is all being discussed in previous video. Do watch. Now, let's come on part A, section 1. Here it's written there we have to attempt only 15 questions out of 21, means 21 questions will be there, we have to do any 15, but here we will be solving all the 21 question. Let's see the very first question. Find the invalid identifier from the following. The answer is B and C both. How? Because when we watch these options, then very first thing we have to know that what are the rules to find that the identifier is valid or invalid. Then the rule says that identifier shouldn't be start with a digit and end. Number C, you can see 2 is there, so it is invalid. Another says that we can't use keyword over here, and here among of them B is a keyword, so we can't use them also. Now rest all, underscore is only a character which is allowed. Here you can see only underscore is already there, so it's allowed. Rest all options are valid. B and C is invalid. Question number 2. Question number 2 is a list given here. Now write the output of the print L25. Slicing is there. So how we come to know? Let me show you practically. Here, okay, let me start a fresh one so you can come to know. Let me open it. I'm just doing it practically so your concept will be clear over there. Okay, what is the list? We have a list this where values are given C. That is a list here, and we do the same thing here. Now you can see this is what a list. Syntax is error. Why? Because gap is given here, which we have to reduce. Fine, this is what a list. Now answer is what it asks. L starting from 2 and ends on 5th index. That is all about an index. Then let me tell you that here list start with indexing 0, means the very first place is what 1 पहले place पे है, that means वो 0 इंडेक्स पे है. उसके बाद 3 है, that means कि वो 1 इंडेक्स पे है. फिर 2 3 4 ऐसे आगे चलता जाएगा. कहाँ तक जाएगा? सीट यहाँ पे आपको वैल्यू पूछा किसका है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और वैल्यू कहाँ ख़त्म हो रहा है, 5 पे. ठीक है, तो इसको जैसे ही हम प्रिंट करेंगे आउटपुट क्या मिल रहा है, 682 एंड 5. कैसे मिला? देखिए स्टार्ट हुआ था हमारा कहाँ से, 0 से, फिर 1 फिर 2. तो 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा 6 है, फिर थर्ड पे 82, फिर फोर्थ पे 5, फिफ्थ पे हमारा 7 है, लेकिन 7 प्रिंट नहीं होगा बिकॉज इट रन्स n-1 टाइम. फाइन, तो जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू दी है 2, यहाँ ये एग्जिस्ट करेगा एंड जो फाइनली वैल्यू दिया होता है वो आपका एक्सक्लूडेड होता है. ठीक है, फाइन. लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन. CSV full form abbreviation, comma separated value, no need to explain it. Number 4, here you have to find the arithmetic operator. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका ग्रेटर देन लेसर देन साइन है, एंड साइन है, सम आर ऑफ relational operator, and then here you can see number C, 2 star is given. What is the use of this 2 star? Exponential value. That how to find an exponent value. तो ये आपका किसका पार्ट है, arithmetic operator से related ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं. Python revision tool, you can watch it out. What are the operators, what are the uses. ये इसका यूज क्या है मैं दिखा देता हूँ. See, if we will be taking any value, I am taking 3
and if you will use this 2 star, then you will get the result as a power. See, 3 to the power 4 and the output is 81. Now it's clear. Okay, let's come on question number next. Suppose a tuple T is declared as this. This is what a tuple, and what we have to know that which of the following is incorrect. फाइन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर क्यों सही है और क्यों गलत है। तो यहाँ ऑप्शंस कितने दिए हैं? 4, और 4 के चारों में एक आंसर गलत है जो बी है। कैसे गलत है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पहला आंसर क्या बोल रहा है आपसे कि प्रिंट T1 फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए कहा गया है। इज इट पॉसिबल? या ऑब्वियसली हम इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, सिंपली यू कैन सी दैट 12 वी हैव रिसीव्ड ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 से। तो 0 प्लेस पे क्या है? 10, और फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 12। 12 इज प्रिंटेड। बट इन नंबर 2 हियर ये -29 वैल्यू ऑलरेडी वहाँ वैल्यू है और आप न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? इन द केस ऑफ टपल, नो, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा। म्यूटेबल नहीं है ना, इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। यू कैन सी लाइव एग्जाम्पल हियर, तो ये कंसेप्ट विल बी क्लियर एट वंस। सी, एरर आ गया ना। नेक्स्ट, प्रिंट किया गया है मैक्स की वैल्यू। लेट्स सी। यस, मैक्सिमम वैल्यू क्या करता है? मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 43, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? len is being used. What is the use of len? To find length. Then here you can find the length. How many values are there? 4. See, 1, 2, 3 and 4. Hope so this answer is also clear to you. Let's come on next. Question number 6. Write a statement in Python to declare a dictionary. डिक्शनरी की बात हो रही है। हुज कीवर्ड्स आर 1, 2 and 3, हुज कीज आर देयर। तो जब भी डिक्शनरी की बात होती है तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आप एक पेयर के साथ स्टोर होता है, एक वैल्यू होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। और बीच में क्या साइन यूज होता है? कॉलन साइन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1, 2, 3 एंड द वैल्यूज आर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो 1 के साथ आपको क्या यूज करना होगा? मंडे। आफ्टर दैट 2 के साथ ट्यूसडे एंड 3 के साथ वेडनेसडे। ये 1, 2, 3 आपके कीज हैं एंड दिस आर द वैल्यूज। और यहाँ पे आपको ये वाला साइन पैरेंथेसिस यूज करना नहीं भूलना है। यही डिक्शनरी का क्या होता है? साइन होता है, यही पहचान होता है। फाइन। नाउ यू विल बी सेइंग कि यहाँ डे लिखना जरूरी था। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 7. अ टपल इज डिक्लेयर्ड दिस। अगेन अ टपल इज गिवन। देखिए यहाँ पे टपल है तो यहाँ पे साइन आपका चेंज है, ठीक है। यहाँ पे आपका और यहाँ पे आपका साइन डिक्शनरी था तो चेंज था। नाउ हियर 2, 5, 6, 9 एंड 8 इज गिवन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम टी? ओके, हम क्या करने जा रहे हैं? सम करने जा रहे हैं टी की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है? लेट मी शो यू। ये क्या करता है? आपका टोटल सम रिप्रेजेंट करता है। सी, दिस इज अ वैल्यू। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ दिस एलिमेंट। तो आप सम कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग यू टू मेक कंसेप्ट क्लियर। और जब आप ऐड करेंगे देन यू विल बी गेटिंग 30 एज अ आउटपुट। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट। नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन और अ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की जब बात होती है देन यू कैन नो दैट वी कैन यूज ABS फंक्शन। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट। नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू सेंड ईमेल्स। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? SMTP। मे बी फुल फॉर्म आ सकता है, एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। देन द फुल फॉर्म ऑफ SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Your friend Ranjana complains that somebody has created a fake profile on Facebook and defaming the character with abusive comments and pictures. तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी, यू नो दैट दिस इज द टाइप ऑफ साइबर स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 11. In SQL, name the clause that is used to display the tuples in ascending order of an attribute. क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे आप।
क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ लिखा है कि इन एसक्यूएल नेम द क्लॉज दैट इज यूज टू डिस्प्ले। क्लॉज की बात किया गया है, ठीक है। अगर क्लॉज की बात नहीं किया गया होता तो सिंपली आप असेंडिंग देख के क्या लगाते हैं, ASC, एंड फॉर डिसेंडिंग DESC। बट हियर व्हाट इज गिवन दैट क्लॉज, एंड क्लॉज आर व्हाट, ऑर्डर, बाय, वेयर, डिसॉल्व, ठीक है। देन व्हाट विल बी द आंसर हियर, हम जब भी असेंडिंग यूज करते हैं या डिसेंडिंग यूज करते हैं देन इट विल बिकम विद इन विच क्लॉज, it's depend upon the condition. Here it is showing that clause, so the answer will be what, order by. Let's come on next. In SQL what is the use of null operator? Fine, हम null का क्यों यूज करते हैं, you all know very well, to check if the column has null value or no value. हम इसको तब अप्लाई करते हैं ताकि हमारा कोई भी कॉलम एम्प्टी ना रहे, सो वी कैन यूज इज null over here, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन SQL. ओके, when we talk about aggregate functions there are 5 main aggregate functions are there: sum, average, count, max and mean. now here अगर आप फंक्शन की बात करें, राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन, तो आप फंक्शन के साथ क्या लगा देंगे, ये फंक्शन साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड? फाइन, जब DDL की बात किया गया है तो मे बी द फुल फॉर्म मे बी आस्क्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL? इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड इसके साथ हम DML भी जानते हैं, जिसका आप डेटाबेस के चैप्टर में आपने पढ़ा था। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तभी आंसर आप कर पाएंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जब हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात करते हैं, स्ट्रक्चर को। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो डेटा से रिलेटेड टास्क अकम्प्लिश करने के काम आता है। सो हियर व्हाट इज DDL? नाउ यू कैन सी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट किस पे बेस्ड होगा, वैल्यू पे बेस्ड होगा। इंसर्ट भी वैल्यू पे बेस्ड है, अपडेट भी वैल्यू पे बेस्ड है, बट अल्टर क्या करता है, पूरे स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सो हियर answer is what, alter table. Now question number 15, नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुइटेबल फॉर कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज। तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था कि माइक्रोवेव या रेडियो वेव के ट्रांसमिशन क्या होते हैं, साइड टू साइड कम्युनिकेशन पर स्टैब्लिश होता है। तो ऊंचे बिल्डिंग हो या फिर हिली एरियाज हो, वी यूज व्हाट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ L. फाइन, L इज गिवन एंड देन Monday 23 हेलो इज गिवन। ये ब्रैकेट आपने देखा ना, ब्रैकेट देखा, आप समझ गए होंगे, दिस इज व्हाट अ लिस्ट। फाइन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, if the following code is executed what will be the output of the following code? Fine, name is given, computer science with Python, and here we are going to print name starting from 3 and then ends on 10। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होता है और कैसे नहीं। अगर अभी अब तक आपको डाउट है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। यू ऑल नो वेरी वेल, आई डोंट थिंक सो दैट बताना पड़ेगा। सी की इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, देन फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो स्टार्ट्स कहाँ से हो रहा है, 3 से, तो क्या प्रिंट होगा, P, देन U, देन T, देन E, देन R, देन S, देन C। कैसे हुआ, क्योंकि 10 हमें इंक्लूड नहीं करना है, 10 - 1 डेट मीन्स कि 9 टाइम्स तक। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, हमारा C तक प्रिंट हुआ। कैसे हुआ आप चेक कर सकते हैं इसको रन करा के। सी, let me show you, this is what a value. Now what we want is, we want this, you can see, fine। अगर आप यहाँ पे, if I'm talking about this, कि अगर आप यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देते हैं तो what will be happening, PTRC क्यों हुआ, बिकॉज वी हैव गिवन अ स्टेप। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, इट मे बी 3, तो इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, अगर 3 वैल्यू मिल जाए आपको तो डोंट बी कंफ्यूज ओवर देयर, इट इज़ व्हाट अ स्टेप। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज प्रिंटेड, PEC,
क्यों ऐसे प्रिंट हुआ, 3 स्टेप दे रहे हैं आप। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, इंडेक्स नंबर 3 से। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका, P से। उसके बाद अगर आपने 2 दिया है तो 2 स्टेप जंप करेगा, 3 दिया है तो 3 स्टेप जंप करेगा। फाइन, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 18। In SQL, write the query to display the list of tables stored in a database. You know very well that is show tables. Question, no need to explanation. Question number 19. What is the expanded form of Wi-Fi? That is wireless fidelity. Question number 20. Which of the following tuples of table constraint will prevent the entity of duplicate rows? We know that a primary key is a constraint which restricts a duplicate entry. Even though यूनिक ऑल्सो ट्रीटेड एज सेम, बट द डिफरेंस इज दैट यूनिक में नल वैल्यू एक्सेप्टेड होता है बट प्राइमरी की में नहीं होता। सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट, अ प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 21, रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो गिवन है उसी में से करना है। सो द फर्स्ट इज व्हाट, बीपीएस, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ, एंड देन बीपीएस के बाद क्या आएगा, के, देन एमबीपीएस, देन जीबीपीएस, उसके बाद क्या दिया हुआ है, टीबीपीएस। सो आंसर इज हियर। आई होप सो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 21 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट अनदर सेक्शन। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 1 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट ऑफ द सेशन, नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2। बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4। ठीक है, हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें से आपको करने कितने हैं, 4। क्वेश्चन इज गिवन 22 नंबर इज दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ठीक है, फाइन। ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू डिक्लेयर एज अ प्राइमरी की। अच्छा, टेबल को देखना है हमें। टेबल में प्राइमरी की किसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यू कैन सी आइटम नंबर है, आइटम नेम है, एस कोड है एंड क्वांटिटी है। तो आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी की हम किससे देते हैं, प्राइमरी की जिसमें डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो यहाँ सब कुछ डेटा रिपीटेबल है बट आइटम नंबर नहीं है। सो द आंसर इज व्हाट, आइटम नंबर। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे आप तो इसमें फुल आउट ऑफ फुल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द डिग्री एंड कोऑर्डिनलिटी ऑफ द टेबल। डिग्री ऑफ कोऑर्डिनलिटी की बात किया जाए तो रो एंड कॉलम की बात होती है। जैसे कि डिग्री पूछा गया तो देखिए कितने में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4। तो आपकी डिग्री कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट इज व्हाट, कोऑर्डिनलिटी। अगर कोऑर्डिनलिटी की बात किया जाए तो सिर्फ आपको हेडर छोड़ के बाकी सब काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वैल्यू क्या हो गई कोऑर्डिनलिटी की, 7। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द एट्रीब्यूट। अच्छा, ये इंसर्ट करने की बात हो रही है और एट्रीब्यूट्स के नेम मेंशन्ड है, आइटम नंबर, आइटम नेम एंड एस कोड। तो आपको लिखने भी उसी टाइप में होंगे। अगर मेंशन नहीं होता तो आप डायरेक्ट इंसर्ट इनटू वैल्यूज कर सकते थे, बट मेंशन है और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 1 2 3 मेंशन है, 3 फील्ड्स के नेम मेंशन है और यहाँ कितने हैं आपके, 4 हैं। तो 3 मेंशन है तो बेटर है कि हम उनका नाम लिख लें। तो हमें लिखना क्या होगा, इंसर्ट इनटू, यू कैन सी हियर टेबल का नाम क्या है, हियर स्टोर। तो वी कैन यूज स्टोर, देन आइटम नंबर, कॉमा आइटम नेम, देन एस कोड। में वैल्यूज क्या क्या इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यूज व्हाट अ कीवर्ड, देन 2010 फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे नोटबुक एंड द लास्ट प्लेस इज 25। यहाँ पे सेमी कॉलर लगाना नहीं भूलेंगे आप, वरना मार्क डिडक्ट हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं मीन्स हो जाएंगे। छोटी छोटी गलतियाँ आपके मार्क्स को डिडक्ट करा देती हैं। आपको लगता है कि आपने आंसर सही किया लेकिन कहाँ से नंबर कट गए, तो ऐसे नंबर कट जाते हैं। केस सेंसिटिविटी को भी ध्यान देना है, कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है। गलती से आपने कैपिटल की जगह पर स्मॉल यूज़ कर लिया, दैट मीन्स डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अबे वांट्स टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माई स्टोर, ठीक है। तो जब भी रिमूव करने की बात आती है, ठीक है, स्टोर को मूव करना है डेटाबेस से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नेम क्या है, स्टोर। फाइन, आई डोंट थिंक सो दैट एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड है इसमें। नंबर ई, नाउ अबे वांट्स टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे ही हम आगे भी पढ़ लीजिए, दिख दिया है कि नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड रिस्पेक्टिव डेटा टाइप भी दिखा है, सब दिखा है। तो सिंपली हमारे पास डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ओके, लेट्स कम ऑन नेक्स्ट। रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल की एक प्रोग्राम दी हुई है, ठीक है। यहाँ करना क्या है, हमें जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लाइन नंबर 1 जहाँ जहाँ लाइन मेंशन्ड है वहाँ पे हमें फिल करना है अप्रोप्रिएट वैल्यू,
फाइन। ये देखिए एक छोटी सी प्रोग्राम दी हुई है आपकी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस आर देयर। नेम द मॉड्यूल ही शुड इम्पोर्ट इन लाइन 1। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या इंपोर्ट करना है, कौन सी मॉड्यूल इंपोर्ट करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोड रीड की जा रही है, फाइल राइटर का यूज़ किया गया है, तो ये डेटा हैंडलिंग का आ गया क्वेश्चन। जब भी राइटर का यूज़ करता है तो हम इंपोर्ट क्या यूज़ करते हैं, इंपोर्ट देन CSV। इंपोर्ट इज ऑलरेडी मैंशन, देन व्हाट यू विल बी राइटिंग इन द ब्लैंक, ओनली CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइल है ये सब। तो ये आपका पहला आंसर क्या हो गया, आपका पहला आंसर हो गया CSV। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच मॉड्यूल रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डेटा इनटू द राइट फाइल। तो जैसे ही फाइल ऐड करने के बाद आएगी तो आपको चला जाना होगा कहाँ, मोड पे। डिफरेंट मोड्स आर देयर लाइक अपेंड मोड, राइट मोड। तो हम लोग अपेंड पूरा ए लिखते हैं फॉर अपेंड, मेनी मोर मोड्स आर देयर, राइट के लिए लिखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है हमारा लाइन नंबर 2 पे, देखना है हमें लाइन नंबर 2 दिया कहाँ है। फाइन, ये लाइन नंबर 1 इंपोर्ट हो चुका था, यहाँ ब्लैंक है। ऐड किया गया है फाइल को और फाइल को ओपन किया गया है। तो यहाँ पे आप दूसरे मोड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन राइट करना है हमें, ऐड करना है, डेटा को ऐड ऑन करना है, न्यू नहीं लिखना है, हमें अपेंड करना है ताकि पिछला डेटा हमारा मिस ना हो। सो वी कैन ओपन द डेटा ऑन विच मोड, अपेंड मोड, दैट इज एंड द कोड इज व्हाट, A फॉर दैट। फाइन। उसके बाद आपका न्यू फाइल राइटर यूज़ हुआ है, राइटर रो पासवर्ड यूज़ हुए हैं, फाइल क्लोज हुआ है, फिर कोड रीड किया गया है। ठीक है, डेटा रीड करने के लिए CSV को R मोड में ओपन किया गया है, रीड किया गया है फाइल एज ए न्यू फाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैंक स्पेस दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है, न्यू फाइल रीडर इक्वल टू CSV डॉट। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 में क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन नंबर 3 टू रीड द डेटा। डेटा रीड करना है, जाहिर सी बात है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, रीडर का यूज़ कर लेंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक लाइन नंबर 4। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली कहीं भी कोई भी फाइल को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे क्लोज फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फाइल को हमें क्या करना होगा, न्यू फाइल ऑलरेडी लगा हुआ है, न्यू फाइल जिसको हम लोग ओपन किए थे उसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। हमने क्लोज कर दिया। ओके, लास्ट राइट आउटपुट ऑफ दिस। आउटपुट लिखना है हमें, तो आउटपुट के लिए एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो वैल्यू पास की गई है वो पास किया गया है अर्जुन दिस 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 एंड दिस, ये वैल्यू पास्ड है। अब ये वैल्यू प्रिंट कहाँ हुआ है, तो देख सकते हैं आप, प्रिंट हो रहा है ऐसे, रो 0 रो 1 करके ऐसे प्रिंट हो रहा है, रो 0 और रो 1, बीच में क्या यूज़ हो रहा है, कॉमा। तो क्या ऐसे ही प्रिंट होगा, बिल्कुल जैसे ही आपने फाइल में वैल्यू पास किया है उसी फॉर्म में आपके आउटपुट भी आने चाहिए। तो आप रो 0 और रो 1 करके प्रिंट कर रहे हैं, सबसे पहला जो नाम आपने पास किया था वो कॉमा के साथ अगली वैल्यू प्रिंट होगी। दैट मीन्स कि अर्जुन, अरुणिमा, फरीदा, दिस ऑल डेटा वैल्यू प्रिंटेड। सी अरुण 1 2 3 कॉमा लगाया था, तो आपका कॉमा क्या करता है, स्पेस देता है। सो ये स्पेस इज गिवन, स्पेस इज गिवन, स्पेस इज गिवन। दैट इज व्हाट पार्ट A is being completed। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको थोड़े से ध्यान देने हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। नाउ ऑन नेक्स्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी गोइंग विथ पार्ट B। तो पार्ट A अगर आपको समझ में आया होगा देन आई होप सो दैट कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो फॉर टुडे I am going to close it here only because part B again if you will be starting then again it will take a time. So we will be continuing it on the next of the video. Till now, if this video is useful and fruitful for you, then don't forget to press the like button, do subscribe if you are new, and share to your friends so it will be helpful for them also. If any modification needed, do comment me. That's it for today. Thank you. Bye bye and Jai Hind.